Is my voice audible to everyone? Please reply. Okay. Hope you all you are safe at your home. So let's start the discussion. Yesterday we have discussed about the income tax, what is the tax rate of for individuals, and out of five heads we have discussed the salaries and house property heads, and what are the deductions available, and new scheme also we have discussed. And today we will discuss about the tax rate of the corporate and and how we will calculate the income tax of the business or profession. So this is one example I have prepared for the concept of CTC, gross salary and salary in hand, which was a question raised in the yesterday class. This is the example. If Mr. A getting salary of rupees 12 lakh per annum, breakup of which is as follows. Basic salary is 6 lakh rupees, HRA 3 lakh rupees, other allowance 3 lakh rupees. Monthly salary slip he is getting as basic salary 50,000, HRA 25,000, other allowance 25,000, and if he suppose he get the bonus also 25,000, that 1,25,000 it is his salary. And EPF deducted rupees 3,000, ESI deducted 1,500, TDS deducted 7,500. The total deduction it is 12,000, and he received in his bank 1,13,000. It is salary in hand. And in CTC, we include gross salary or any other benefits provided by the company which is cost to the company. Like medical insurance is if company has taken for all of the employees, then it is cost for the company and it will be the part of CTC of the employee. If company is providing food coupons, meals, vouchers, it will not be covered in gross salary, but it will be part of the CTC. And gratuity, if the employee work in a company more than 5 years, then he will get the gratuity from the company. He is not getting on monthly basis; it will get after serving the 5 years. So it will be also part of the CTC to the company. If any company provides car to the employee for their official and personal use, at that cost to the company also CTC to the company of employee. All other benefits provided by the company, it's a cost to the company. जो भी कंपनी खर्चा कर रही है एक एम्प्लॉय के लिए वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से वो एक कॉस्ट है कंपनी के लिए, वो उसका सीटीसी का पार्ट रहता है। और जो उसकी मंथली सैलरी है, ग्रोस सैलरी है और आफ्टर डिडक्शन जो उसके अकाउंट में पैसा आता है वो सैलरी इन हैंड है। सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है इसका। होप इट इज क्लियर नाउ।
This is the comparison I have prepared, which I have explained yesterday also, but today I have prepared the chart for you. Like fixed deposit, debt mutual fund, equity mutual fund, and PPF. If we are comparing the return of these in FD, we will get the 5.5 to 6% annual return, which is it is now. After reduction, it is around 6%. And in debenture mutual fund, if we invest, we will get around 7 to 8%. It is a guaranteed we will get minimum 7%. And equity mutual fund, it depends on the market. We can get around 10 to 18%, but it is not guaranteed. It can be anything, but in a long term, around 5 years, 10 years, 20 years, you will definitely get this returns around 10 to 18%. In PPF, it is around 8%. If we talk about the lock-in period, in fixed deposit, if we need, if we want to get the benefit of HTC, it must be 5 years lock-in period. At the venture mutual fund, there is no benefit under taxation, ATC, and other deduction, but there is no lock-in. In equity mutual fund, there is a 3 years lock-in period, and we get the deduction under section 80C for the investment in tax-saving mutual fund, which is like ELSS. You can call also. PPF, there is a lock-in period of 15 years, and fixed deposit we get the benefit under section 80C. Debt mutual fund, there is no benefit under taxation. But for the comparison with FD, we can say that we get the better return in debt mutual fund other than FD. And equity mutual fund, we get the 80C benefit, and PPF also we get the 80C. What will be the tax rate if we earn the income out of this FD and mutual fund? If we get the interest on FD, it will be taxable as normal income as per your slab. If we get the income out of that mutual fund, if it taxable as per normal slab, if we sold after 3 years, it will be taxable at the rate 20% with indexation. And indexation also covers the inflation around 5 to 6%. And as per that, your 5 to 6% return is exempt, but 1 or 2% may be taxed at the 20% after if you sell that mutual fund after 3 years. You can say it is exempt to some extent if you sell that mutual fund after 3 years, but FD is not exempt. And return is also higher than FD in this. Equity mutual fund, it is exempt up to 1 lakh in a year. And if your gain is more than 1 lakh in a year, then it will be taxable at the rate of 10%. PPF is also exempt. Interest on PPF is also exempt. Return expectancy is FD, it is guaranteed. Debt mutual fund, it is almost guaranteed. Equity mutual fund is expected, it cannot be guaranteed, depends on market condition. PPF is obviously guaranteed. So you can compare these, the various investment options before investing this. As we are associated with the Gujarat-based company as investment advisor, if you need any advice and any help in this for investment mutual fund, NPS, we have one online platform where you can sell, buy SIP, any mutual fund, NPS, all these things in our one platform. If anyone is interested, then he can personally call me or message me, but not on this. FD इन्वेस्टमेंट एफटीसी में एलिजिबल है, लेकिन वो लॉक इन वाली होती है और वो 5 इयर्स की होता है, उससे पहले आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते.
जो नॉर्मल एफडीज आप करते हैं वो ब्रेकेबल होती है, जो जब मर्जी ब्रेक करते हो तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता आपको। टैक्स सेविंग वाली आप 5 ईयर से पहले ब्रेक नहीं कर सकते। So can we move ahead or any question in this two slides? Yeah, realization is taxable if it is tax saving FD or normal FD. If you get the interest, TDS also deducted on that, and you have to pay tax also on interest. But you will get the benefit under TC. It is a mere difference in tax saving FD or normal FD. Any more question if any have? Okay, we are moving ahead now. इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो first of all you should understand mutual fund also. In mutual fund is a group who is managing the fund. There is a fund manager who is managing the fund of the group. They investing in the 100 to 100 companies, top listed companies. There is a different types of scheme in the mutual fund which invest as per their scheme. And mutual fund, when you invest in the shares, you will get the shares, number of shares. When you invest in the mutual fund, you get the units. If a value of one unit is as per market rate, it is suppose 100 rupees. You invest 1000 rupees, then you get 10 units. And if the market improves, then units value already correspondingly improves also. So when you suppose you purchase the 100 units at the rate of 10 rupees, and when you sell it, its value is 20. So how much is the difference, the gain? So gain value of rupees 1 lakh is exempt. Suppose if you invest 10 lakh rupees and you got the 10% return in a year, and you got 1 lakh rupees profit in a year, so 1 lakh is exempt in a year. If you got 1 lakh 20,000, then 20,000 will be taxable at the rate of 10%. Now we are moving for corporate taxation. In last session, we have discussed the tax rates for individual, HUF, AOP, BOI, artificial judicial person. Now we will discuss what will be the tax rate in the limited companies, private limited companies, LLP firms, and what are the different conditions to weigh the benefit in the tax rates. Here is the rate chart on firms and companies. It is for assessment year 2021, which is currently going on. If a company turnover is below 400 crore in the previous year 17-18, 17-18 फाइनेंशियल ईयर अगर किसी कंपनी की टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, तो he can pay tax at the rate of 25%.
plus surcharge, if any, plus education cess. It is a simple condition which every company can avail. Small companies turnover below 400 crore. Second case is company opting for section 115 BAA. It is a new section BAA and BAB introduced for this assessment year, introduced in the last budget and effective from this assessment year. In section 115 BA, any company can take that benefit, but there is some condition which the company have to lose, like other deductions, ATIA, ATIB, the series he cannot avail, he cannot take the benefit of carry forward losses. These are the conditions. After fulfilling that, he can avail that benefit. 22%, there is a mandatory surcharge of 10% in this rate. So effective rate will be around 24.2%. If your income is rupees 1 lakh and 100 rupees also, it will be chargeable to surcharge also at the rate of 10%. And if company opting for the section 115 BAB, there is a condition that company should be manufacturing company. He is engaged in the manufacturing business, and which company should start from period of 1st October 2000. It was released 1st October 2021. In this section, no marginal relief. It is a mandatory surcharge of 10%, irrespective of your income. Marginal relief will be available in the below cases. In 115 BAB, your business starts from 1st October 2019 and up to 31st March 2023. If you incorporate your company in this period, you can take the benefit of this 15%. So that further condition also that you have to lose some deductions and carry forward losses or other things, but it must be manufacturing business only. New business, not a restructuring of old business. It must be new business. You have to incorporate, purchase new plant and machinery, and everything should be new. And any other domestic company which do not fall in the above three conditions, he can pay tax at the rate of 30%. BBA, there is no section. It is a BAA or BAB, which is applicable from assessment year 2021. Because in this budget, there is no change in this type of section. The last budget, it was introduced. And in case of partnership firm, there is no such condition. Partnership firm LLP, you have to pay 30% flat tax. No benefit for LLP or partnership firm. And in case of surcharge, it starts from if your income exceeds 50 lakh rupees. For individual HUF, AOP, BOI, it is 10%, 50 lakh to 1 crore. And firm and company, there is no surcharge. It was mainly introduced
to catch that salaried person which are getting salary 50 lakh, more than 50 lakh, to get them under surcharge category. Because mainly major business is running under the LLP firms and company, and individuals, major taxpayers are under salaried class only. So to cover that under the category of surcharge, they have made some these changes and introduced the surcharge for the income more than 50 lakhs to 1 crore. If total income is more than 1 crore up to 2 crore, there is a surcharge of 15%, and for firms it is 12%, and company it is 7%. And if total income exceeds 2 crore and up to 10 crore, there is a, for individual HUF is same 15%. It is firm for 12% and company for 7%. If the total income exceeds 10 crore, then it is 15% for individual, 12% for firms, and 12% for companies. So this is the surcharge rates which will be applicable. Any question on this? Mainly, government has introduced these schemes for companies because government has better control on the companies, not only individuals. The government wants to, yes, it is applicable. To promote the persons, they should incorporate the companies and run business under the companies. And due to double taxation, also to give some relief to the taxpayers, it was introduced. Now, starting the income from business or profession, how we calculate the income which will be taxable under the head business profession, what will be the deduction allowed, what expenses allowed, what not allowed, is the main thing. Here is the one computation which we are preparing for every SSC, whether it is individual, company, firm, for compute the profit which will be taxable as per Income Tax Act. We have prepared the financials, balance sheet, P&L as per the Companies Act, or as per, if it is individual, then normal as per Income Tax Act. And what will the profit before tax we take in the computation directly from the P&L account. And we add depreciation as per books of accounts. जो भी उसकी बुक्स मेंटेन हो रूल्स के हिसाब से, शेड्यूल 2 के हिसाब से वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा अपनी बुक्स में। और अदर देन कंपनीज हैं तो वो सभी इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से सेम होता है, तो जो ऐड होगा और जो नीचे लेस होगा वो सेम ही होगा। कुछ कंडीशन हो सकती है और डिफरेंस हो सकता है, अगर कोई पॉलिसी हम उसमें डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं इनकम टैक्स में और बुक्स में, तो उस कंडीशन में वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जनरली सेम ही होगा आपका। लेकिन कंपनीज के केस में वो डिफरेंट होता है कि एज पर बुक्स आपका डेप्रिसिएशन कुछ और होगा और एज पर इनकम टैक्स आपका डेप्रिसिएशन कुछ और होगा। तो आपका एज पर बुक्स आपने P&L में डेबिट किया हुआ है, एक्सपेंस लिया हुआ है, उसको हम ऐड बैक कर देते हैं, और जो एज पर इनकम टैक्स आपका डेप्रिसिएशन आता है उसको हम लेस करते हैं कि आपका इनकम टैक्स के हिसाब से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें, इनकम टैक्स रूल के हिसाब से रेदर देन कंपनी सेट के हिसाब से। तो ये हम इफेक्ट इसलिए लेते हैं। और कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउड होते हैं एज पर इनकम टैक्स सेट, वी विल डिस्कस्ड सम ऑफ देम, एंड कुछ अलाउड होते हैं जो मे बी प्रीवियस ईयर डिसअलाउड हुए हो और नेक्स्ट ईयर में भी अलाउड हो जाए।
तो कुछ उस टाइप के केसेस होते हैं। मेनली फॉर्मेट ये रहता है और यही हमारा बेसिक नीड रहती है, ये हमें डिटेल्स जो चाहिए होती है to prepare the competition. Next, here is the list of the disallowed expenses under Income Tax Act. Any expense of personal nature. In this personal nature, mainly one traveling expense. In every case, it will be highlighted. If any company is incurring traveling expense, maybe foreign trip and domestic trip, every company is putting in the company account of any trip of any personal nature also. If they are going for any personal trip, family trip also, then they are putting in the company books and claiming as a deduction. And when the traveling expense is much bigger amount, then it will be highlighted and obviously catch in the scrutiny. And then we have to prepare documents and produce to the AO for proof that it will relate to business, not it is a personal trip. So this type of expenses, which generally company is claiming personal expense, traveling, and capital nature, mainly it will be if any company increase authorized capital, an expense of that increasing the authorized capital, you pay ROC fees, stamp duty. It is of considered as capital nature, then it will be also disallowed in computing the income tax. And companies on which PF and ESI is applicable, companies deducting employee share from the employees, and that must total equal share depositing in the employees account. The company is also depositing the same amount in the employee share. मतलब जो कंपनी पी एफ एस आई जिस पे एप्लीकेबल होता है, जितना ही अगर सपोज 1000 उसका पी एफ एस आई डिडक्ट हो रहा है, पी एफ के केस में सेम अमाउंट कंपनी भी जमा कराती है अपने शेयर, और ई एस आई के केस में अमाउंट एम्प्लॉयर का शेयर ज़्यादा होता है, कंपनी वो भी जमा कराती है। तो जो एम्प्लॉय शेयर होता है, जो कंपनी ने उसका डिडक्ट कर लिया एम्प्लॉय का और जमा कराना है उसको, और अपना शेयर भी जमा कराना है। अगर कंपनी एम्प्लॉय का शेयर विद इन ड्यू डेट जमा नहीं कराती है, जो आई थिंक अराउंड 15 होती है नेक्स्ट मंथ पी एफ एस आई के लिए, अगर उस डेट तक पी एफ एस आई नहीं डिपॉजिट होता है, तो जो एम्प्लॉय शेयर है वो आपका डिसअलाउ हो जाता है। विद इन इफ नॉट कंपनी नॉट डिपॉजिट द पी एफ एस आई एम्प्लॉय शेयर, फिर कंपनी ने एम्प्लॉय शेयर डिडक्ट कर लिया और नहीं जमा कराया, वो डबल डिफॉल्ट होता है कि आपने किसी से पैसा ले लिया और गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया। एम्प्लॉयर शेयर जो होगा वो अलाउड हो जाएगा, उसके लिए सेपरेट कंडीशन है कि आपको रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले वो डिपॉजिट हो जाना चाहिए। इट विल कवर अंडर सेक्शन 43B, which will be allowed on payment basis. बट एम्प्लॉय शेयर आपका ड्यू डेट से पहले ही जमा हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट मंथ की 15 होती है पी एफ एस आएगा, अगर उस डेट से पहले नहीं जमा कराती है कंपनी, तो ये टोटल एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाता है। जो आपका प्रॉफिट है जिसमें आपने ये एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है, इस इतना एक्सपेंस हम उसमें ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है उससे, जिसपे आपका टैक्स का इफेक्ट आता है, टैक्स भी आपका इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई पेनल्टी आपने पे करी है फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ, किसी भी लॉ की वायलेशन करी है आपने, सेबी लॉ या किसी भी लॉ की, अगर उस केस में कोई पेनल्टी नेचर की आपने पे करी है, वो भी इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होती, क्योंकि अगर आप कोई वोलेट करेंगे तो इनकम टैक्स में नहीं अलाउ करते हैं वो, क्योंकि वो आपका फॉल्ट है कि आपने कोई लॉ वोलेट करा है, तो आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं ट्रीट किया जाता। अगर कोई भी एक्सपेंस है आपका जिसपे आपकी टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी है, you are required to deduct TDS on that expenditure and you have not deducted that, then also that expenditure will be disallowed, but it will be disallowed only 30% of that expenditure. 30% of that expenditure amount will be disallowed in your computation and added back in your profit, and your profit also increase due to that. If you are making any cash payment
more than 10,000 in a day, then it will be also disallowed in your expense. You cannot make any cash payment. You have to all do the transaction through banking channel only. But it can be up to 10,000 in a day for any specific expense. It is expense wise limit. For any particular expense, it is a 10,000 in a day. For separate expense, it will be, it is a expense wise limit. There is a section 43B which government allow on payment basis, payment only on payment basis. बिकॉज सभी जो एक्सपेंसेस है हमारे सैलरीज है या कोई भी हमारा खर्चा होता है बिजनेस में, हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो भी हमारा एक्सपेंस है हम P&L में डेबिट करते हैं और उसको एज अ एक्सपेंस क्लेम करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इस सेक्शन में कहती है कि कुछ एक्सपेंस हैं जो आपको आप उस एक्सपेंस की पेमेंट करेंगे तो ही आपको अलाउड होगा, नहीं तो नहीं अलाउड होगा। वो पेमेंट डेट होगी आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले। जो आपकी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट होती है उससे पहले अगर आपकी पेमेंट हो जाती है तो उस केस में आपका एक्सपेंस वो अलाउड होगा, नहीं तो नहीं अलाउड होगा। इसमें जो आपके एक्सपेंसेस आते हैं मेनली जो टैक्सेस होते हैं, सभी टाइप के टैक्सेस आपको जब भी अलाउड होते हैं तो आप उसकी पे कर देते हैं। लाइक ये PF ESI का एम्प्लॉयर शेयर है, इट इज लाइक अ टैक्स एंड यू हैव टू पे एम्प्लॉयर शेयर बिफोर रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट। तो अगर आपकी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले पे हो जाता है तो आपको उस ईयर में अलाउड हो जाता है। अगर वो उसके बाद पे होता है तो आपको नेक्स्ट ईयर में अलाउड होता है एक्सपेंस। उस ईयर में अलाउड हो जाए, डिसअलाउड हो जाएगा आपका। अगर आप रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बाद पे करते हैं तो उस ईयर में वो एक्सपेंस आपका डिसअलाउड हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर में अगर आप पे कर देते हैं तो वो अलाउड हो जाएगा आपको। और इसके अंदर आता है आपका जो भी बैंक्स के इंटरेस्ट हैं, आपके कोई भी आपकी लिमिट चल रही है बैंक्स की या कोई टर्म लोन है, उसमें आपको कोई भी आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो आपका पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है। अगर 31 मार्च का आपका कोई भी इंटरेस्ट पेबल आ रहा है, अगर वो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले पे हो गया तो आपको अलाउड हो जाएगा, नहीं अदरवाइज यू हैव टू ऐड बैक दैट आल्सो इन द प्रॉफिट। अगर कोई आप एम्प्लॉइज को बोनस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, जो बोनस हम दिवाली पे देते हैं, दैट शुड आल्सो बी पेड बिफोर द रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट। जनरली ये कंपनीज में डिसअलाउड होता है क्योंकि हम बोनस का प्रोविजन 31 मार्च में करते हैं और दिवाली आपकी सपोज नवंबर में है, हमने रिटर्न 30 सितंबर में फाइल की है तो पेमेंट उसकी नवंबर में होगी तो वो नेक्स्ट ईयर में आपको अलाउड होगा। हमने एक्सपेंस तो क्लेम मार्च में किया है तो हमें उस ईयर में उसको एक्सपेंस को ऐड बैक करना पड़ेगा प्रॉफिट में, प्रॉफिट हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट ईयर में जब आपने पे किया है, नवंबर में पे किया है क्योंकि रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद पे हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर में आपको अलाउड हो जाएगा वो एक्सपेंस। बोनस के केस में ये होता ही है जनरली। और इसमें आपका बैंक का इंटरेस्ट आ जाता है, टैक्सेस आ जाते हैं और जनरली यही रहता है आपका इसके अंदर। मतलब और कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए हमारा जैसे फंड के लिए पेमेंट करते हैं, कोई ग्रेचुटी फंड के लिए, और कोई भी हमने अगर स्पेसिफिक कोई फंड क्रिएट किया हुआ है वो भी आपका पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है। ग्रेचुटी का प्रोविजन लेंगे तो प्रोविजन डिसअलाउड हो जाएगा, जब हम ग्रेचुटी की पेमेंट करेंगे तब allowed होगा। और ये लास्ट पॉइंट है हमारा प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस। इट मीन्स अगर हम प्रीवियस ईयर का हमने P&L बैलेंस शीट बनाया, उसमें कोई हमारा एक्सपेंसेस था जो हमें मिस हो गया बुक करने के लिए, जो हम नेक्स्ट ईयर में बुक कर रहे हैं उसको। कोई परचेज का बिल था हमसे छूट गया मार्च में और हमने उसको बुक किया अप्रैल में नेक्स्ट ईयर, तो एज पर इनकम टैक्स लॉ इट विल आल्सो डिसअलाउड and you cannot allowed in the next year also. You cannot take that benefit of that expense if this was missed in that year. मतलब जो भी पिछले साल का खर्चा होगा आपका वो उसी साल में अलाउड होगा। अगर आप अगले साल में लेते हैं आप उसको तो आपको नहीं मिलेगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
Any question till this slide? If it all clear, then please confirm in the chat. Bank charges allowed. There is no restriction on any bank charges. And salary, it must be, if any person we are paying in a cash, then it can be allowed up to 10,000. Salary more than 10,000 also is allowed for any employee. Any other question? Logically, you cannot show this, no? Because practically ये possible ही नहीं कि आप 10,000 per day देंगे उसको 30 days. जिसकी भी सैलरी अगर ज़्यादा है तो उसको बाय बैंक बाय चेक पे ही होता है उसको. आप बुक कर सकते हैं लॉजिकली, लेकिन वो कहीं भी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली. क्लियरली वो चीज़ शो करेगा कि वो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता. Any other question? Please confirm so we can move ahead. If it's all clear. If anyone have any doubt, so please let me know so you can understand going ahead also. Okay. In a particular expense, you can show up to 10,000 for any expense in a day. अगर आपके पास कोई बिल है 10,000 रुपये का या कोई 20,000 रुपये का बिल है, तो उसकी आप 2 दिन में पेमेंट दिखा सकते हैं कि हमने एक दिन 9,000 दिया, एक दिन मतलब 10,000 दिया, उसको ब्रेक करके. लेकिन उसको ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं. अगर आपका 2-3 लाख का बिल है तो वो पॉसिबल नहीं है. 1 और 2 डेज का प्रैक्टिकली उसको प्रूव भी कर सकते हैं आप, लेकिन उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है.
So now we are starting with the depreciation schedule 2 to the Companies Act कि कंपनीज जो होती हैं आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या लिमिटेड कंपनी, उसमें आपका जो डेप्रिसिएशन बुक होता है वो कैसे बुक होता है, उसका आपका स्पेसिफिक रूल है जिसके हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन बुक करना होता है। पहले जो डेप्रिसिएशन होता था उसमें रेट आपको डिफाइन था कि आपको जस्ट रेट लगाना था और उस पर कैलकुलेट करना था, बस अब ये कंसेप्ट आपका चेंज हो गया। इसमें आपको यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करनी करनी होती है। कोई भी एक एसेट है, उस एसेट की यूजफुल लाइफ सपोज 5 ईयर्स उसको यूज कर सकते हैं या 20 ईयर यूज कर सकते हैं या 60 ईयर यूज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसको डिफाइन किया हुआ है कि आप उस एसेट को कितने साल यूज कर सकते हैं और उतने ही साल में उसको आपको डेप्रिशिएट करना है। उस एसेट की 5% रेसिडुअल वैल्यू, अपने सपोज 1 लाख की मशीनरी खरीदी है, उसका 5%, 5,000 लेस करके जो वैल्यू रहेगी आपको उसके 10 ईयर पीरियड में या 15 ईयर पीरियड में उसको हम डेप्रिशिएट कर सकते हैं कम्प्लीटली। 5% हम इसलिए रखते हैं कि आपके पास 5% वो जब खत्म होगा जब आपके पास एसेट आप उसको सेल ऑफ कर देंगे या डिस्पोज ऑफ कर देंगे। अब हो सकता है आपने 10 ईयर्स की गवर्नमेंट डिफाइंड लाइफ की हुई है लेकिन आप उसको एसेट को यूज़ किया है 15 ईयर्स, तो आपकी बुक्स में वो 10 साल में उसकी वैल्यू 5% पे आ जाएगी। 5% वो रहेगी 5 साल तक, जब तक आप उसको एसेट को डिस्पोज ऑफ ना कर दें या उसको सेल ऑफ ना कर दें। इसलिए कि वो डिस्क्लोजर रहे कि हमारे पास कंपनी के पास कितनी एसेट है, उसके लिए 5% हम रखते हैं कि 5% आपकी वैल्यू उसको बैलेंस रखना पड़ेगा आपको एसेट में। तो हम जो भी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है, अगर हम एसएलएम मेथड यूज़ करते हैं, जो भी हमने एसेट खरीदी है उसकी जो वैल्यू है उसमें 5% हम रेसिडुअल वैल्यू लेस करते हैं और डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। इज अ बेसिक सिंपल फॉर्मूला। आप यूजफुल लाइफ लेस करके रेसिडुअल वैल्यू लेस करके डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कर देंगे तो पर ईयर उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा जो आपको हर साल लगाना है एज पर एसएलएम। और एज पर जो डब्ल्यू है उसका ये फॉर्मूला है आपका। इस फॉर्मूले से आप लगाते हैं तो इस फॉर्मूले से आपका रेट आ जाता है कि उस पर 17% डिप्रिसिएशन लगेगा, 18% डिप्रिसिएशन लगेगा या 20% डिप्रिसिएशन लगेगा। उस डिप्रिसिएशन को आप उसकी यूजफुल लाइफ तक लगाएंगे तो लास्ट में उसकी 5% वैल्यू आपकी बच जाएगी ऑटोमेटिकली। इस फॉर्मूले से आप अगर रेट निकालते हैं डब्ल्यू का तो लास्ट में आफ्टर 15 ईयर्स तो आपकी रेसिडुअल वैल्यू ही बचेगी, उसकी 5% वैल्यू बचेगी। जो हमारी कॉस्ट होती है उसमें हम जीएसटी ऐड नहीं करते हैं, वो आपको क्लियर है। जो जो भी मशीनरी की कॉस्ट होगी। और यूजफुल लाइफ मीन्स होता है कि हम उसको कितने साल यूज कर सकते हैं उस एसेट को। रेसिडुअल वैल्यू यू कैन से स्क्रैप वैल्यू आल्सो which will be 5% of the original cost of the asset. We have added one chart, one example also for your understanding. हाँ, इसके लिए ऑप्शन आप कोई भी यूज कर सकते हैं और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए एज योर अकाउंटिंग पॉलिसी। एलएमडब्ल्यू कोई भी फॉलो कर सकते हैं। कैन यू ऑल सी दिस एक्सेल चार्ट ना? एक्सेल फाइल सभी को दिख रही है अभी? ओके। ये हमने एग्जांपल लिया है, सपोज आपने एक 1227 बिल नंबर है, सेट खरीदी है 15 अप्रैल 2018 को। ये सप्लायर का नाम है, ये मशीनरी आपकी 2 लाख रुपीज़ की उसकी वैल्यू है।
और उस पर जीएसटी या आपका चार्ज हो गया तो उसकी 236 वैल्यू आ गई है। तो उसकी प्लांट मशीनरी की आपकी यूजफुल लाइफ 15 ईयर्स होती है। तो हमने उसकी जो इस साल में लाइफ आएगी आपकी 31 मार्च तक, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके 351 डेज आ जाएंगे कि इस साल में हमें 351 डेज का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। और 5% उसकी रेसिडुअल वैल्यू हम निकाल देंगे विच इज 10,000। तो जो आपका ईयरली डिप्रिसिएशन आ जाता है इसमें 2 लाख रुपीज माइनस 10,000 डिवाइड बाई 15 ईयर्स, इट विल बी 12,667। एंड हम पर्टिकुलर ईयर का डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो उसको 351 से डिवाइड डेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे और 365 से डिवाइड कर लेंगे, तो आपका 351 दिन का डिप्रिसिएशन आ जाएगा जो हमें इस साल में चार्ज करना है। और ये डिप्रिसिएशन अमाउंट हम लेस कर लेते हैं, आपकी डब्ल्यू वैल्यू आ जाती है 31 मार्च की। वो आएगा डब्ल्यू माइनस डिप्रिसिएशन अमाउंट, सॉरी जो आपकी डिप्रिशिएबल वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो आपकी ये डब्ल्यू है, इसमें से हम 5% वैल्यू लेस करेंगे, जो आपकी सैलवेज वैल्यू है, रेसिडुअल वैल्यू है, वो लेस करके आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गया जो आप ड्यूरिंग द नेक्स्ट यूजफुल लाइफ उसको डेप्रिशिएट कर सकते हैं। ईयरली डेप्रिशिएशन इट इज अ सिंपल फॉर्मूला। F4 means value of fixed asset 2 lakh rupees minus L4 which is your 5% scrap value 10,000 divided by 15 J4, it comes your yearly depreciation। एंड फिर आपको जस्ट 351 डेज का उसको कैलकुलेट करना है, तो 351 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे और 365 डेज से डिवाइड कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए डेप्रिशिएबल वैल्यू जो आपकी रहेगी, तो जो डब्ल्यू आएगी उसमें से आप 10% लेस कर देंगे जो आपकी सैलरी वैल्यू है, तो ये बैलेंस आप डेप्रिशिएट कर सकते हैं बैलेंस यूजफुल लाइफ। तो आपकी जो यूजफुल लाइफ रही 31 मार्च 2019 तक 351 डिवाइड बाय 365, ये आपकी यूजफुल लाइफ रही, 1 ईयर से कम रहा थोड़ा सा। और रिमेनिंग जो यूजफुल लाइफ रहेगी आपकी 14.038 ईयर्स रहेगी। और जो नेक्स्ट ईयर आपको डेप्रिशिएट कैलकुलेट करेंगे, आपको जो डेप्रिशिएबल अमाउंट 177 डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट सेम अमाउंट आता रहेगा जो आपका ईयरली डेप्रिशिएशन है एज पर एसएलएम मेथड। तो आप यही अमाउंट हर साल डेप्रिशिएट करते रहेंगे। जो लास्ट ईयर होगा उसमें अमाउंट आपका कम आएगा क्योंकि जो ईयर डिफरेंस रहेगा, तो एसएलएम में ऐसे ही चलता रहेगा। एसएलएम सबको क्लियर है अभी? प्लीज कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर एसएलएम मेथड। मशीन जो भी आप एसेट खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू जो आपके बिल बिल होगा आपके पास उस एसेट का, जो असेट की कॉस्ट है आपके लिए वही वैल्यू होगी, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन हटा के, सॉरी जीएसटी हटा के, जीएसटी हटा के जो आपके पास बिल है असेट का वो उसकी वैल्यू रहेगी। जीएसटी benefit taking is more beneficial if you are eligible, but in some cases when the SSC cannot take the GST benefit if they are providing only exempt services only, in that case he cannot take any GST credit, so in that case they can charge depreciation on the GST value also. But if anyone can take the credit of GST, then it will be more beneficial. Depreciable amount वो होता है कि आपका आप कितनी वैल्यू बची आपके लिए
आपके पास जो आप डेप्रिशिएट करनी है आपको, WDV में से 10% आप जो 10,000 5% जो वैल्यू है आपकी सैलवेज वैल्यू वो लेस कर देंगे तो आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गया, जो आपको बैलेंस यूजफुल लाइफ में डेप्रिशिएट करना है। मतलब बैलेंस आपको डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालना है और बैलेंस आपको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालनी है और उसको डिवाइड कर देना है, तो आपका वही डेप्रिशिएशन आ जाएगा। मतलब कितनी आपके पास डेप्रिशिएशन की एसेट की वैल्यू बची है जो डेप्रिशिएट करनी है और उसकी लाइफ कितनी बची है। सभी कंपनीज में ये चार्ट बनता है और यही फॉर्मेट रहता है आपका SLM के केस में, और हम इसको ईयर टू ईयर ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। और मैंने रेट कैलकुलेट किया आपका जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट जो SLM के हिसाब से रेट आ रहा है हमारा 6.33% आ रहा है। और इसी एग्जांपल में वही फॉर्मूला लगा के अगर मैं एसेट रेट निकालता हूँ आपका एज पर WDV, तो इट विल कम 18%, 18.10%। तो हमको जस्ट उस फॉर्मूले से रेट निकालना है और जो आपकी 2 लाख रुपीज़ की वैल्यू है उसमें से 18.10% लेस कर देना है। तो मैंने यहाँ पे किया आपकी 2 लाख रुपीज़ की वैल्यू इंटू में J9 आपका 18.1%, इंटू में K4 फॉर 351 डेज डिवाइड बाय 365 डेज। तो इस ईयर के लिए आपका ये डेप्रिशिएशन आ गया, तो WDV लेस होने के बाद ये आ गई। नेक्स्ट ईयर में भी आपका जो WDV रहेगी आपकी, WDV पे आप 18% लगाएंगे, 18.10%। और इसमें WDV पे आप लेस करते रहेंगे कि जो आपका परसेंटेज 18% है इसमें सब इंक्लूड है आपका। आपको हर बार 5% स्क्रैप वैल्यू लेस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको जो WDV है उस पर आपको 18.10% लेस कर देना है, तो आपकी नेक्स्ट ईयर की WDV आ जाती है। Yeah, I will share this chart. Any other query on this chart or depreciation schedule? WDV सिंपल है, जस्ट आपको मैंने जो फॉर्मूला PPT में मेंशन किया और यहाँ एक्सेल में भी लगाया हुआ है, अगर वो फॉर्मूला आप लगाते हैं उससे आपका डेप्रिशिएशन का रेट आ जाता है, जिस रेट पे आपको डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। और जस्ट वही रेट आपको 2 लाख रुपीज में से हम 18% माइनस कर देंगे। मतलब अगर पूरे ईयर का है तो 18% माइनस कर देंगे, कुछ पार्ट ऑफ द ईयर है तो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ डेज के हिसाब से उसको माइनस कर देंगे। और नेक्स्ट ईयर से भी हम WDV में से 18% माइनस कर देंगे, तो आपका वो डेप्रिशिएशन आता रहेगा और WDV आती रहेगी। इसमें कोई जस्ट आपको एक फॉर्मूला लगाना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेट एज पर WDV, वही रेट आपका अप्लाई होता रहेगा ईयर ऑन ईयर। Please confirm it is clear to everyone or still have any doubt, please let me know. Okay, so I'm closing this Excel sheet, proceeding to these are the rates useful life available as per schedule 2 to the companies act। फैक्ट्री बिल्डिंग, अगर किसी की फैक्ट्री की बिल्डिंग है तो उसमें 30 ईयर्स यूजफुल लाइफ है। अगर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो वो 60 ईयर्स की यूजफुल लाइफ होती है उसमें। प्लांट एंड मशीनरी आपकी कोई है तो उसकी 15 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है। फर्नीचर फिक्चर्स है तो 10 ईयर्स की है। कोई मोटरसाइकिल है
बाइक टाइप में है तो 10 ईयर्स की होगी, अगर मोटर कार है तो 8 ईयर्स की यूजफुल लाइफ होगी। ऑफिस इक्विपमेंट कोई आप लेते, ऑफिस के लिए कोई अगर इक्विपमेंट है, मशीनरी है छोटी मोटी, तो वो 5 ईयर्स की यूजफुल लाइफ में आएगा। कोई कंप्यूटर्स है या कंप्यूटर्स रिलेटेड आइटम्स है तो वो 3 ईयर्स की यूजफुल लाइफ आएगी उसकी। और कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो वो 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है। ये हमारा रेट आता है अब डेप्रिसिएशन चार्ट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में हम कैसे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इसमें सिंपल आपका रेट है। अब इस रेट को आपको फॉलो करना है और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जस्ट लाइक हमने डब्ल्यूडीबी जो भी फॉलो किया था वही रहेगा। इसमें रेट डिफाइन होता है, रेट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो वही रेट आपको डब्ल्यूडीबी में लेस करते रहेंगे, आपका डेप्रिसिएशन आता रहेगा। इसमें भी हमारे पास दो मेथड होते हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीबी। तो जो हमारे रेट्स मेंशन है इनकम टैक्स एक्ट में, बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5% है, कमर्शियल बिल्डिंग है तो 10% है, फर्नीचर फिक्सचर के लिए 10%, प्लांट मशीनरी के लिए 15%, कंप्यूटर्स के लिए 40% है, जो पहले 2 साल पहले 60% होता था, और इंटेंजिबल्स के लिए 25% है। इंटेंजिबल्स में आपका जो पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, या आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, कोई लाइसेंस है, तो वो सब आपके 20 इंटेंजिबल्स में आते हैं। इंटेंजिबल्स मीन्स जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे सॉफ्टवेयर आपका आपने कोई डिज़ाइन किया हुआ है, प्रोडक्शन का डिज़ाइन है जो आपके पास उसने पेटेंट किया हुआ है, तो वो आपका इंटेंजिबल्स है। वो उसको आप उसका फ्रेंचाइजी को दे सकते हैं, राइट टू यूज दे सकते हैं किसी का, तो आपके लिए एसेट है, लेकिन उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कुछ भी। ये सॉफ्टवेयर आपने कोई डिज़ाइन किया हुआ है जिसकी आप फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, तो आपका उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ओनली इंटेंजिबल्स है आपके लिए, वो आपका 25% में कवर होगा। और इसमें दो मेथड आपके, एसएलएम और डब्ल्यूटीबी, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे कैसे इसको कैलकुलेट करना है, एसएलएम और डब्ल्यूटीबी। एसएलएम में सपोज आपकी 1000 की एसेट की कॉस्ट है, हम उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे। नेक्स्ट ईयर वो 10% लेस करेंगे 1000 में से, तो उसकी डब्ल्यूडीबी आ जाएगी 900। नेक्स्ट ईयर फिर उसमें 100 लेस करेंगे। एसएलएम में जो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो सेम रहेगा, और डब्ल्यूडीबी में आपका जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो डब्ल्यूडीबी पे लगाएंगे आप 10%। बस इसमें ये डिफरेंस है। एसएलएम में अगर आपका 100 रुपीज़ का डिप्रिसिएशन आ रहा है, वो ओवर द ईयर्स 100 रुपीज़ ही रहेगा। आप 100 रुपीज़ 100 लेस करते रहेंगे, जो उसकी डब्ल्यूडीबी आएगी एसेट की। और डब्ल्यूडीबी मेथड में जो आपकी डब्ल्यूडीबी आएगी उसका 10% लेस करेंगे। यहाँ पे सपोज 900 की आपकी डब्ल्यूडीबी है, उसका 10% आप लेस करेंगे तो 90 रुपीज़ लेस होगा, फिर आगे 81 रुपीज़ लेस होगा, तो आपका ऐसे ही 10% आप लेस करते रहेंगे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मूव अहेड। Please everybody reply fast so we can move ahead. If anyone have doubt then please let me know, otherwise इनकम टैक्स एक्ट में भी आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों मेथड है इसके अंदर। जनरली डब्ल्यूडीबी फॉलो होता है।
we can move ahead. There is a section 44AB which says audit under income tax act. कौन कौन से एसेसीज होंगे जिनको ऑडिट इनकम टैक्स में कराना होगा? बिजनेस की, कोई भी बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, तो वो रिटर्न फाइल कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, अगर आपकी टर्नओवर कोई लिमिट से एक्सीड हो जाती है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स ऑडिट कराना होगा तो मैंने सीए। तो उसके लिए जो हमारी लिमिट है, अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी 1 करोड़ की लिमिट है। अगर कोई प्रोफेशन आप कर रहे हैं तो उसकी 50 लाख रुपीज की लिमिट है टर्नओवर की। और ये थर्ड कंडीशन आपकी जो होती है, ये प्रिजम्पटिव इनकम में है आपका, जो अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको, तो आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा क्या है। मतलब किस टाइप के फंड की बात कर रहे हैं आप? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इनकम ना, कि किस टाइप की इनकम है। जनरली अगर उसी साल में एक्रू हो जाती है तो उस साल में आपको इनकम टैक्स उस पर देना होता है। मतलब फंड किस लिए आया आपका, कोई बिजनेस किया आपने, या कोई प्रोफेशन है, या कोई किसी चीज की इनकम है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका, लेकिन जनरली उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, ज़्यादा ईयर्स नहीं है आगे होगा। बट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इनकम which you are receiving in your account. Please tell me specific if you have any query. तो एडवांस होता है, एडवांस टैक्सेबल नहीं होता आपका। अगर कोई सप्लायर है जिससे आप कोई गुड सेल करते हैं, जिसको कस्टमर है आपका, उससे आप कोई आपने एडवांस ले लिया लेकिन आपको उसने सेल नहीं किया, आप उसको नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट 2 मंथ्स में सेल कर देते हैं, तो आपकी इनकम वो कंसिडर होगी। एडवांस बेस पे इनकम नहीं कंसिडर होगी, और उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने एडवांस इतने, सपोज 1 ईयर आपके पास एडवांस रहता है, तो एज पर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि आप उसको गुड्स डिलीवर नहीं कर रहे, या फिर क्या रीज़न है। अगर कोई आपका स्कूटनी में केस लगता है तो आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा, कोई बिजनेस रीज़न जेन्युइन होना चाहिए आप। या आपको अगर ईयर टू ईयर, सपोज 10 ईयर्स आप चाहें कि एडवांस ही खड़ा रहे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, फिर आपकी वो इनकम्प्लीट हो जाएगी उस साल। 6 मंथ्स ओके है, लेकिन एज पर बिजनेस आपका वो नेचर वो होना चाहिए जिससे आप उसको जस्टिफाई कर पाए कि आपके बिजनेस में ऐसा होता है कि हम 6 मंथ एडवांस होता है। इंडस्ट्री वो होनी चाहिए। अगर आप प्रूफ कर सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, और कॉन्टैक्ट हो आपके पास कस्टमर के साथ, तो आप उसको कर सकते हैं। एक्ट में कोई ऐसी लिमिट नहीं है। एक लिमिटेशन पीरियड होता है, जो लिमिटेशन एक्ट होता है एक, उसमें 3 इयर्स का मेंशन होता है पीरियड। अगर आपका 3 इयर्स आपके हो गए हैं, किसी को पेमेंट देनी है आपको, तो 3 इयर्स अगर कोई आपसे पेमेंट नहीं मांगता है तो वो आपका केस फाइल नहीं कर सकता कोर्ट में। अगर 3 इयर्स तक उसने आपसे पेमेंट नहीं मांगी है तो आप उसको फिर राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में कोई ऐसी लिमिट नहीं। ये थर्ड कंडीशन आपको आगे समझ में आ जाएगी जो हम ये सेक्शन करेंगे। तो ये 1 करोड़ और 50 लैक्स की लिमिट है बिजनेस के लिए, जो 1 करोड़ की लिमिट है, अभी इस बजट में वो 5 करोड़ इंक्रीज कर दी गई है, कि जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होगी
को ऑडिट कराना होगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। प्रोवाइडेड इफ योर कैश ट्रांजेक्शन ऑफ योर पेमेंट एंड ऑफ योर रिसिप्ट शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ योर टोटल रिसिप्ट और पेमेंट। अगर आपकी कैश में ट्रांजेक्शन, अगर टोटल रिसिप्ट जो आपकी ड्यूरिंग द ईयर, इसके लिए आपको फंड फ्लो, कैश फ्लो प्रिपेयर करना होगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपका जो रिसिप्ट है उसका 5% से ज़्यादा कैश ना हो, और जो तो पेमेंट है उसकी भी 5% से ज़्यादा ना हो। दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है, दोनों विद इन 5% है, तो आपको 5 करोड़ की टर्नओवर तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको फर्स्ट ये कंडीशन वेरीफाई करनी होगी कि बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, assessment year 21-22. It is for business only, not for profession. To promote the digital transaction, if any business is going on 100% on digital, no cash payment, then he can take the benefit of this. जो ऑडिट होता है, ऑडिट्स के कुछ फॉर्म्स होते हैं। अब इसमें कंपनीज का भी ऑडिट, कंपनी का ऑडिट और इलेक्ट्रिक का ऑडिट उनके एक्ट में भी होता है, और हम इसको इनकम टैक्स में भी ऑडिट करते हैं। और इंडिविजुअल एचयूएफ का कहीं और ऑडिट नहीं होता है, उसका ओनली इनकम टैक्स में ऑडिट होता है। तो जिस एसएससी का किसी और एक्ट में भी ऑडिट हो रहा है, लाइक कंपनीज, एलएलपी, सोसाइटी, उनका किसी और एक्ट में भी ऑडिट हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्म 3CA एंड 3CD जाता है। 3CD तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है जो कॉमन है सब केस में। फॉर्म 3CA उस केस में जाता है जिसका ऑलरेडी किसी और एक्ट में भी ऑडिट हो चुका है। कंपनीज का, हम कंपनी एक्ट में भी ऑडिट मैंडेटरी है, उसको कोई लिमिट नहीं है। तो उसका अगर इनकम टैक्स में भी 1 करोड़ से एक्सीड कर जाती है टर्नओवर, तो उसको इनकम टैक्स में भी ऑडिट कराना होता है, जिसके लिए फॉर्म 3CA 3CD उसके लिए अप्लाई होगा। अगर कोई इंडिविजुअल है जिसका कहीं ऑडिट होता ही नहीं है, तो उसका इनकम टैक्स में ऑडिट फॉलो होगा, तो उसके लिए फॉर्म 3CB एंड फॉर्म 3CD भी जाता है। इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म्स जिसकी जो ड्यू डेट होती है 30 सितंबर होती है, वो जो ये इस बजट से 31 अक्टूबर हो गई है। नहीं सॉरी, वो रिटर्न की हुई है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की नहीं हुई है। जो उनकी रिटर्न जाती है टैक्स ऑडिट एसएससी की, उसके लिए 31 अक्टूबर कर दिया गया है। लेकिन आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो सीए को फाइल करनी है वो 30 सितंबर ही है। पहले दोनों डेट सेम थी, अब वो नेक्स्ट ईयर से उसको रिटर्न की डेट आपकी एक्सटेंड हो गई, लेकिन इस साल 30 सितंबर ही रहेगी। नेक्स्ट ईयर से दैट विल अप्लाई। और इसकी अगर कोई एसएससी सोचे ऑडिट हमारे लॉ में मैंडेटरी है, अगर ऑडिट नहीं कराता है, तो उसकी जो टर्नओवर है उसका 0.5% और 1,50,000 विच एवर इज लोअर, उसका पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर, जो इन एनी केस यू हैव टू पे। अगर कोई एसएससी ऑडिट नहीं कराता है एज पर इनकम टैक्स लॉ, तो उसको टर्नओवर का 0.5% और 1.5 लाख रुपए जो कम होगा उसमें उसको पे करना होगा। होप इट इज क्लियर। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं तो उसके लिए 30 नवंबर डेट होती है। लेकिन डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग तो एबोलिश हो चुका है। अगर जिसकी इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग की ट्रांजेक्शन है किसी एसोसिएट कंपनी के साथ, तो उसके लिए फॉर्म 3CEB जाता है। 3CEB फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग, उसकी जो ड्यू डेट होती है 30 नवंबर होती है। 3CD नहीं, 3CD तो जाएगा ही जाएगा उसका, अगर उसकी 1 करोड़ से ऊपर लिमिट है। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए ट्रांजेक्शन है उसकी, ट्रांसफर प्राइसिंग उसी केस में एप्लीकेबल होता है किसी की एसोसिएट कंपनी है, सपोज उसकी सिस्टर कंसर्न है या उसकी कोई और कंपनी है इंडिया से बाहर है, उसके साथ और इंडिया में जो कंपनी है उसकी आपस में कोई ट्रांजेक्शन है, तो उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होता है, जिसकी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट होता है। उसका ऑडिट सेपरेट है और इसका ऑडिट सेपरेट है। अगर कोई कंपनी है जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है लेकिन उसकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, तो उसका फॉर्म 3C ट्रांसफर प्राइसिंग जाएगा, 3CD नहीं जाएगा।
तो दोनों ऑडिट बहुत सेपरेट है, तो उसको कहीं मिक्स नहीं करें आप। और जो फॉर्म जाता है वो 3CE भी जाता है। उसके इसमें ड्यू डेट आपकी 30 नवंबर ही हो जाती है। 3CB की 30 नवंबर हो जाएगी।44 AD ADA हम अभी करेंगे, अब पूरा सेक्शन एक्सप्लेन करेंगे आपको, आगे है वो। तो ये फर्स्ट हमारा, गवर्नमेंट ने सभी लॉज बनाए हैं आपके लिए कि बिजनेस में कैसे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्या एक्सपेंसेस अलाउड करने हैं, क्या डिसअलाउड करने हैं, और कैसे आपको उस पर टैक्स लगेगा, आप ऑडिट भी कराना है। ये सब जो कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ एसएससीज के लिए कुछ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें आप जस्ट टर्नओवर का कुछ परसेंटेज आप अगर प्रॉफिट दिखा देते हैं, उतना परसेंट या उससे ऊपर, तो आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें काफ़ी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, ना कोई ऑडिट होगा आपका। तो ये वो सेक्शन है आपके कुछ। वो करते हैं अभी, जो 44 AD है आपका, इसमें कुछ एलिजिबल एसएससीज हैं और एलिजिबल बिजनेस हैं, जिस जो ये इसका सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। इस सेक्शन में ये होता है कि अगर आपकी जो भी टर्नओवर है, टर्नओवर का प्रूफ आपको मेंटेन रखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपकी टर्नओवर कितनी है, वो आपको प्रूफ करनी पड़ सकती है। बस उसके अलावा आपको कोई बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि क्या आपका एक्सपेंस है, क्या उसमें एक्सपेंडिचर हुआ है नहीं हुआ है। अगर स्क्रूटनी में लगती है तो कोई एओ क्वेश्चन नहीं कर सकता आपसे कि आपका कैसे ये प्रॉफिट आ रहा है। अगर आप उसमें आप 8% या 8% से ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देते हैं, नेट प्रॉफिट आपके P&L में फॉर द इनकम टैक्स पर्पज, तो यू डोंट नीड टू मेंटेन एनी बुक्स एंड यू कैन फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 AD। और उसमें गवर्नमेंट ने फिर कुछ रिलैक्सेशन दे दी थी 6% की। अगर सपोज आपकी 1 करोड़ रुपीज की टर्नओवर है, उसमें से आपकी 80 लाख रुपीज की टर्नओवर थ्रू बैंकिंग चैनल है, उसकी जो पेमेंट आई है आपके पास थ्रू बैंकिंग चैनल आई है, चेक से या ईसीएस से। और 20 लाख रुपीज की टर्नओवर जो है वो कैश में टर्नओवर है। तो जो आपकी बैंकिंग चैनल वाली टर्नओवर है उस पे आप 6% तक भी प्रॉफिट ले सकते हैं। और जो कैश में टर्नओवर है आपकी, उसका आपको मिनिमम 8% मार्जिन उसमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर बैंकिंग में होता तो उसके लिए रिलैक्सेशन है, 6% ले सकते हैं। लेकिन उसमें आप फिर आपको कोई एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते, इसके बाद 8% के बाद 6% के बाद कोई आप डेप्रिशिएशन नहीं ले सकते। और जो ये 44 AD स्कीम है आपकी, इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म्स के लिए है ओनली, कोई कंपनी के लिए नहीं है, एलएलपी के लिए नहीं है, किसी और एसएससी के लिए नहीं है। ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म, बट एलएलपी वुड नॉट टेक दैट बेनिफिट एंड कंपनी ऑल्सो। एलिजिबल बिजनेस में क्या रहेगा आपका, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 2 करोड़ है या 2 करोड़ से कम है, उसके लिए वो इसका बेनिफिट ले सकता है। और जो पर्सन 44 AD में फॉल करेगा प्रोफेशन में, जिसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है। और कोई पर्सन 44 AE में फॉल करेगा जो ट्रांसपोर्ट का जिसका बिजनेस होता है, उसके लिए भी स्पेसिफिक सेक्शन है। तो वो इस सेक्शन में बेनिफिट नहीं ले सकते उनके लिए, क्योंकि स्पेसिफिक सेक्शन बनाया हुआ है 44 AD A और AE। और किसी की कमीशन इनकम है या ब्रोकरेज इनकम है,
तो वो इस सेक्शन में फॉल नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई बिजनेस है और साथ में आपको 5 लाख रुपीज की कमीशन इनकम भी आई है, तो आप 44AD में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आप फाइल कर देंगे तो यू विल गेट नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट। It is a very important point that associate should not have any commission or brokerage income to avail that benefit. Most of the businessmen files their return in this section because you don't need to maintain any books. Agency business means you are doing any on agent basis. You are working for an agent for any your principal, then you will be the agency business. It is same like you are earning commission. You are agent for someone and earning commission from that. इस सेक्शन के आने बाद कुछ गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम आई इसमें कि कुछ लोग जो हैं इसको ऑप्शन समझते थे कि हम किस साल में अगर हमारे पास कुछ एक्सपेंस नहीं है या फिर कुछ प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं है, तो उस साल में आप 44AD अप्लाई कर लेते थे। अगर आपके पास सब कुछ ठीक है, आपका प्रॉफिट कम आ रहा है, तो आप 44AD से बाहर जाके प्रॉफिट कम दिखा देते थे और टैक्स उस पर कम पे कर देते थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें एक कंडीशन और डाल दी थी कि आप इधर उधर मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप कि हर साल ये नहीं कर दिया कि कभी आप उससे बाहर आ गए। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस में आप रहना चाह रहे हैं, 44AD में या आउटसाइड 44AD। उसकी स्लाइड ये है। उसमें एक ये है, अगर कंपनी कोई चाह रही है, कोई एसएससी है जो मार्जिन 8% और 6% से भी कम दिखाना चाहता है, वो कहता है कि मेरे बिजनेस में 8% और 6% से भी कम मार्जिन होता है, तो उसको आपको ऑडिट कराना पड़ेगा बुक्स। तो उसके लिए कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं है। अगर आपकी 10 लाख की भी टर्नओवर है, अगर आप दिखाते हैं कि 8% से कम मार्जिन दिखाते हैं, तो आपको फिर ऑडिट कराना पड़ेगा हम चार्टर्ड अकाउंटेंट। यही वही था जो प्रीवियस स्लाइड में 44AB में था कि अगर आप प्रॉफिट मार्जिन से कम दिखाएंगे, अपना लिमिट से मार्जिन कम दिखाएंगे, तो आपको ऑडिट कराना होगा। उसमें जो कंडीशन डाली गई है वो मैं आपको एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से शो कर देता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 13-14 में अगर आपने ऑप्ट किया 44AD में और फाइनेंशियल ईयर 14-15 में आपने आउट हो गए, मैं 44AD में नहीं फाइल करना है, तो उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आप 44AD में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपको 44AD से बाहर ही रिटर्न फाइल करानी होगी और उसका ऑडिट भी कराना होगा। दैट इज द कंडीशन which was inserted recently। इसमें आप नेक्स्ट ईयर में आउट आउट हो जाते हैं या उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक भी आप, अगर आप आउट करते हैं 44AD से, जब भी आप आउट करेंगे स्कीम से, उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते 44AD का। तो आपको डिसाइड करना होगा स्टार्टिंग से कि आप 44AD में जाना चाहेंगे या 44AD से बाहर रहना चाहेंगे। And 80 to 90% small businesses file return under section 4480 only. Any question in this 4480? Please reply fast so we can move ahead, or if you have any queries, so type it in the chat box. Okay.
Now the second section is 44 ADA. This section is for profession, whether it is a legal, medical, doctors, advocates, engineers, architect, accountancy professional, technical consultancy, इंटीरियर डिजाइनिंग और फिल्म आर्टिस्ट है, तो ये इन लोगों पे कवर होता है। अगर कोई प्रोफेशन में है तो वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने डिफाइन करी हुई है लिमिट, अगर जो आपकी ग्रोस रिसिप्ट है ड्यूरिंग द ईयर, उसका 50% आप अगर मार्जिन दिखा देते हैं अपने प्रोफेशन में, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 50% और हाइयर, अगर उससे कम दिखाना चाहते हैं तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। इसमें इसमें भी अगर 44 ADA में जाते हैं तो आपको कोई एक्सपेंस नहीं क्लेम कर सकते, कोई डिप्रिशिएशन यू कैन नॉट क्लेम, एंड ग्रोस रिसीट शुड नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। अगर आपकी वो 50 लाख से एक्सीड कर जाती है तो ऑब्वियसली आप ऑडिट में फॉलो हो जाएंगे। 50 लाख से कम है तो आप 44 ADA में जा सकते हैं। लेकिन वो 44 ADA में आपने अगर ध्यान दिया हो तो वो लिमिट 2 करोड़ रुपीज की है, और ऑडिट की लिमिट है 44 ADA में 1 करोड़ की। तो उस केस में अगर 2 करोड़ तक आपकी टर्नओवर है और आप 44 AD का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं लेंगे तो आपको ऑब्वियसली ऑडिट में ही जाना पड़ेगा। इसमें भी आप 50% से कम आप मार्जिन दिखाते हैं तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, और इसमें डिफाइंड प्रोफेशन है जो जो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर वो इसमें फॉल नहीं कर सकते, फॉल नहीं करते हैं, तो वो 44 AD में फॉल करेंगे। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो इसमें फॉल नहीं करता है तो वो ही कैन टेक बेनिफिट ऑफ 44 AD। होप इट इज क्लियर। Now the third section is 44 AE. It is for transporter business who running the transport, but there is a condition that the person should not own more than 10 trucks या 10 goods carriages, maybe heavy weight या low weight। उस पर्सन के पास 10 से ज़्यादा ट्रक्स नहीं होने चाहिए। 10 तक ट्रक है तो वो इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है, जो अगर हैवी वेट व्हीकल है, हैवी वेट मीन्स उसका वेट 12,000 kg से ज़्यादा है, तो वो 1,000 पर टन फॉर एवरी मंथ। 1,000 पर टन मीन्स 12,000 पर मंथ पर ट्रक। वो आपको उसको इनकम शो करनी होगी हैवी वेट के केस में। मतलब हैवी वेट व्हीकल उसके पास अगर 10 ट्रक हैं तो उसके 12,000 पर टन आ रहा, पर आपका आ रहा है, पर ट्रक आ रहा है 12,000। अगर 10 उसके पास ट्रक है तो 1,20,000 आपकी मंथली इनकम इसमें आ जाती है इसके हिसाब से। उस हिसाब से आपकी ईयरली इनकम आ जाती है। अगर वो लाइट व्हीकल है जिसका वेट 12,000 kg से कम है तो उसमें 7,500 रुपये पर मंथ है पर ट्रक, और अगर हैवी वेट है तो 12,000 पर मंथ है पर ट्रक। उसके इस फॉर्मूले के हिसाब से वो अपनी इनकम कैलकुलेट कर सकता है। अगर वो इससे कम दिखाना चाहता है तो सेम कंडीशन है कि आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। इसमें भी कोई आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। और इसमें एक और कंडीशन है कि अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है तो इस प्रॉफिट के बाद भी आप उसकी पार्टनर्स की सैलरी एंड इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन में, जो बाकी दो सेक्शन में नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस सेक्शन में अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो सैलरी टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स आप क्लेम कर सकते हैं। होप इट इज क्लियर। Then there will be two separate business. For business, you can take the benefit of 44 AD, and for profession, you can take the benefit of 44 ADA.
one person may have one business, two business, 10 business he can run. So according to business, he have to decide the turnover limit and section. दो सेपरेट बिजनेस हो जाएंगे, वो सेपरेट बिजनेस का सेपरेट ट्रीटमेंट होगा, आपकी सेपरेट लिमिट होगी और सेपरेट सेक्शन रहेंगे। रिटर्न आपकी एक ही जाएगी, एक ही सेक्शन में आप एक ही रिटर्न में दो बिजनेस, तीन बिजनेस सब अलग अलग उसमें मेंशन कर सकते हैं कि आपके कितने बिजनेस हैं। Any other question? Everybody should take part in this chat, so I can assume that everybody is listening. And move fast. Charitable trust cannot take that benefit. It is for only individual and nature and firm. फोर्टी फोर एडी का बेनिफिट नहीं ले सकते हो, 44 एडीए या 44 एई में है तो वो दे सकते हैं, लेकिन